یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہے یہ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ اس کا کوئی پاؤں ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر آپ ایک اور آئینی عدالت بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہو رہا ہے، تو ہمارے سے زور، زبردستی، جبر، ظلم، جیلیں، ان سے کام نہیں بنا، تو اب اس طرح کی ترامیم کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چکر گھومے گا آپ کے اوپر۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ سارے زندگی ایسا ہی رہے گا اور ایسا ہی ہوگا، اور آپ سیاسی پارٹی کو یا سیاسی کارکن کو یا کسی سیاسی لیڈر کو وکٹمائز کرو گے، اور آپ یہ سمجھتے ہو پھر آپ پہ یہ باری نہیں آئے گی، تو آپ بہت بڑے بیوقوف ہو۔ ایسی حرکت نہ کرنا، کیونکہ جو گڑھا کسی اور کے لیے کوئی کھوتا ہے، اسی گڑھے میں پہلے وہ خود گرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے، مگر قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمبر گیم ابھی بھی کم ہے، اور حکومت پورا کیسے کرے گی اس کو؟ کیا لوٹے بنائے جائیں گے؟ بغیر آئینی ترمیم ہو سکے گی؟ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے حکومت کے پاس جس سے حکومت نمبر پورے کر پائے گی؟ اور جے یو آئی ایف اے کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم تحریک انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا مولانا تحریک انصاف کو آن بورڈ کر آئینی ترامیم کروا پائیں گے؟ ادھر صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے علیحدہ اجلاس طلب کر لیے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 4 طلب کیا گیا تھا۔ آئینی ترامیم قومی اسمبلی اور سینٹ میں فی الحال پیش نہیں کی جا رہی ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہوں گے۔ سلمان عابد صاحب کے ساتھ ہمارے نمائندے وقاص احمد موجود ہوں گے۔ سلمان عابد صاحب، آپ کی اجازت سے ذرا میں وقاص احمد سے پہلے بات کرتی ہوں۔ احوال کیا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس تو وقاص ملتوی ہو گیا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سیاسی جماعتوں کی جو مشاورت کا عمل ہے وہ 1 مہینے سے جاری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 16 تاریخ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں اجلاس ملتوی کر دیے گئے تھے آئینی ترمیم نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس 1 مہینے کے دوران پارلیمانی کمیٹی کے تقریباً 7 سے 8 اجلاس ہوئے جو بے نتیجہ رہے، اور کل ایک بڑی اہم بیٹھک لاہور میں سجی جس میں 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں اس قائدین کی مشاورت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئینی ترمیم منظور کرائی جائے گی اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ دو بڑے چیلنجز اس وقت حکومت کے سامنے تھے۔ پہلا جو بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جو سیاسی اتفاق رائے ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر وہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور خاص طور کے اوپر جے یو آئی کے جو تحفظات ہیں ان تحفظات کو دور کیا جائے۔ حکومت وہ کرنے میں کافی حد تک کامیاب دکھائی دی ہے۔ اور دوسرا جو بڑا جو چیلنج تھا حکومت کے لیے وہ نمبر گیم تھا کہ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ میں اگر جے یو آئی فے کو اگر ساتھ ملا بھی لیا جاتا ہے تو جو میجک فگر ہے قومی اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں جو 65 اراکین کی جو حمایت ہے وہ حاصل کرنا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کا آرٹیکل 63A سے متعلق جو نظرثانی کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے بھی حکومت کی کافی جو مشکلات حل کرنے میں آسانی پیدا کر دی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں اس وقت 8 اراکین اسمبلی آزاد ہیں، گونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، لیکن کیونکہ ان کی قومی اسمبلی میں ان کی حیثیت جو ہے وہ آزاد اراکین کی ہے، لہٰذا حکومت کی جانب سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو قومی اسمبلی میں آزاد اراکین ہیں ان کی جو ہے وہ ضمیر کے ووٹ کے اوپر ان کی جو ہے ووٹ لیا جا سکے تاکہ آئینی ترمیم کو وہاں پر منظور کرایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے گئے تھے، لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاسوں کے جو ایجنڈے ہیں ان میں 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے شامل نہیں کیا گیا، جو کہ کل بڑی جو ہے وہ بیٹھک لاہور میں سجی، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج بلایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے حکمت عملی تبدیل بھی کی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ سب سے پہلے آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ سینٹ میں پیش کیا جائے گا، اور سینٹ سے منظوری کے بعد جو ہے اسے قومی اسمبلی میں لے کر آئیں گے۔ اسی والے سے آج سینٹ کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی رکھا گیا ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف تمام سینیٹرز کو جو وہ ظہرانہ بھی دیں گے، لیکن آج کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کیونکہ ایجنڈا جاری ہو چکا ہے اس میں 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہے، لیکن کبھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ جو 2 سے 3 دن ہیں ان میں سیاسی جماعتوں کی مشاورت مزید جو وہ کی جائے گی۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا آج دوبارہ اجلاس 11:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اس تمام عرصے کے دوران 5 مسودے سامنے آئے ہیں حکومتی اتحادی جماعتوں کے سامنے، جس میں ایم کیو ایم کی جانب سے الگ مسودہ دیا گیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے الگ مسودہ سامنے آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا الگ مسودہ سامنے آیا ہے، حکومت کی جانب سے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کا الگ مسودہ سامنے آیا ہے، جبکہ جو بلوچستان کی پارٹیاں ہیں جن میں بی این پی مینگل ہیں، باپ پارٹی ہے اور اس کے ساتھ نیشنل پارٹی ہے، ان کی جانب سے بھی کل پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ایک اور مسودہ جو میجر پارٹیز ہیں ان کے مسودے سامنے آئے ہیں۔ تحریک انصاف کا کوئی مسودہ تیار ہی نہیں ہوا، کچھ سامنے نہیں آیا، وہ مولانا کے آسرے پہ ہی رہے، پھر کیا؟
जी बिल्कुल, देखिए इस तमाम अरसे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI की जो मरकजी क़यादत है वो ऑन बोर्ड रही और उनकी जानिब से यही कोशिश की जाती रही कि एक मसवदा मुश्तरका तौर के ऊपर तैयार किया जाए ताकि उसे ना सिर्फ पार्लिमानी कमेटी बल्कि उसे हुकूमत के साथ भी शेयर किया जा सके। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी मसवदा जो वो तैयार नहीं किया, बल्कि कल इनकी सियासी कमेटी का इजलास भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें ये फैसला किया गया कि वो 26वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेगी और हर फोरम के ऊपर इसके खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए सलमान साहब, बहुत शुक्रिया इंतजार करने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बातचीत चल रही है, हमने देखा है कि शंघाई ताउन तंजीम में खामोशी इख्तियार की तहरीक इंसाफ ने, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि मुल्की मफादात में अगर कुछ देर खामोशी इख्तियार कर ली जाए बेहतर है, लेकिन अब बोलने का वक्त है। तो आपको लगता है कि इस बार आईनी तरमीम के हक में तहरीक इंसाफ बोलेगी, मौलाना राम कर पाएंगे तहरीक इंसाफ? देखिए, पहली बात तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये आईनी तरामीम जो है अदालती इस्लाहात हैं या किसी सियासी एजेंडे की अज़ाइम की तकमील का एजेंडा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज के दिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमें नहीं मालूम कि हुकूमती मसवदा क्या है। कोई हतमी मसवदा आपके सामने नहीं है जिस पे हम बात कर सकें, जिस पे पार्लिमान बात कर सके, जिस पे मीडिया बात कर सके, जिस पे सिविल सोसाइटी बात कर सके, जिस पे बुकला बात कर सके। एक ड्राफ्ट है, हर एक का अपना अपना जिसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन अगर हुकूमत ने आज इसको मंजूर करवाना था, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया हुआ था, काबीना का इजलास बुलाया हुआ था, तो ऐसी कौन सी खुफिया कानून साजी हो रही है और ऐसी कौन सी खुफिया पार्लिमान की बालादस्ती की जंग लड़ी जा रही है जिसको इतना खुफिया रखा जा रहा है कि हमें आखिर तक नहीं पता चल रहा। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर नंबर गेम पूरे हैं तो ये रात गए तक अरकाने असम्बलियों को अगवा करना, उनके घर वालों को अगवा करना, उनकी बहू बेटियों को अगवा करना, बच्चों को अगवा करना, ये कौन सी रिवायत है सियासत में? और ये क्या इससे आप पार्लिमान को मजबूत करना चाहते हैं? क्या इससे आप रिफॉर्म्स जो है अदलिया की मजबूत करना चाहते हैं? अभी भी नंबर गेम को पूरा करने के लिए उनको बड़े क्राइसिस का सामना है, जैसे अभी वक्कास बता रहे थे। अभी उन्होंने वक्कास ने कहा जी वो आज़ाद अरकान ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। अब आप मुझे बताइए, वो ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे या दबाव की बुनियाद पर वोट देंगे, डरा के वोट लिए जाएंगे? ये कौन सी सियासत की जा रही है पाकिस्तान में? एक बात। दूसरी बात यह है कि बुनियादी मसला कहाँ पे अड़ा हुआ है? वो अड़ा हुआ है, हुकूमत चाहती है कि एक वफाकी आईनी अदालत इंडिपेंडेंट तरीके से कायम हो और उसका एक चीफ जस्टिस हो। फजलुर रहमान कहते हैं कि जो पहले 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्हीं को आप आईनी अदालत का दर्जा दे दें और जितने आईनी अमूर से मुतल्लिक मामलात हैं उसको वो डील करें और चीफ जस्टिस एक होगा। अभी पीपल्स पार्टी में और JUI में ये डेडलॉक है, हुकूमत भी और JUI में ये डेडलॉक है। इसलिए कल रात कहा जा रहा था ना कि बैठक सज गई है, बस बारात आने वाली है, उसके बाद दूल्हा सज जाएगा, सुबह ये पार्लिमान जो है के अंदर ये आपके सामने आ गया कि वो सब चीजें पीछे चली गई, इसलिए कि मौलाना भी अड़े हुए हैं। अच्छा, अब मौलाना जो अड़ गए हैं उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उनको माजी का तल्ख तजर्बा है जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से कि जो माजी में तय हुआ था इक़्तिदार की बंदर बांट में, वो फॉर्म 47 वाला मामला उनके साथ तो नहीं हुआ, बाकी सबके साथ हो गया। दूसरा उनको मसला ये है कि अब वो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स में चले गए हैं। पॉपुलर पॉलिटिक्स में उन्होंने गेन किया है ये सारी आईनी तरामीम के कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर वो कोई बारगेन करते हैं तो उनकी पॉलिटिक्स वापस रिवर्स होगी। तो इसलिए मौलाना भी इंजॉय कर रहे हैं और वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं, उधर भी खेल रहे हैं, जहां बेहतर लगेगा वो होगा। लेकिन मौलाना अगर वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक कर जाते हैं अलहदा से, तो मौलाना की तो ये सारी की सारी जद्दोजहद जो पिछले 1.5 माह से हमें देखने को मिल रही है ये ठुस हो गई। उन्होंने तो इसकी मुखालफत की थी कि अभी वो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं मानेगी ना। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नुक्ते पे मान सकती है, वो ये है कि जी जो 5 मोस्ट सीनियर जजेस हैं जो JUI की तजवीज है उस पर उन्होंने कहा कि हमें इत्तफाक है, आप बना लें, अलहदा से वफाकी आईनी अदालत नहीं बनेगी। इसलिए अब ये PTI का मौकफ तो वही है जो JUI का मौकफ है। अब अगर JUI का मौकफ होता है जिसपे हुकूमत इत्तफाक कर लेती है, पीपल्स पार्टी इत्तफाक कर लेती है, तो बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद 2-3 चीजें और है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, वो जो जजेस की को सूबाई बदरी थी, एक सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जा सकेगा। फिर आइन की बुनियादी ढांचे के अंदर कुछ तरामीम करने की बात, जो फंडामेंटल राइट्स के वो सवालात है, उस पर भी JUI नहीं मान रही, मिलिट्री कोर्ट पे भी वो नहीं मान रही। मिलिट्री कोर्ट पे तो पीपल्स पार्टी जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी के अपने तहफुजात हैं मिलिट्री कोर्ट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो इसलिए ये अभी इतना आसान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। तो फिर मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें ये कहा है कि अदालतों के मामले पर, अदालतों के इस्लाहात पर तो इत्तफाक हो गया है, फिर इत्तफाक किस बात पर? देखिए, इस्लाहात एक और चीज है,
वफाकी आईनी अदालत एक और चीज है। अब अगर आप इस्लाहात, तो ये भी होगी कि हमने 5 मोस्ट सीनियर जजेस को सुप्रीम आईनी अदालत के अमूर दे दिए हैं, ये भी इस्लाहात का तरीकाकार है। वो भी इस्लाहात का तरीकाकार है जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि वफाकी आईनी अदालत होगी, लेकिन उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। अच्छा, अब कोशिश ये हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बज़िद हैं कि बनेगी आईनी अदालत, और ये तो बिलावल भुट्टो साहब के पास जब ये बात है और सबने इस पर बिलावल भुट्टो साहब के पास कौन से इख्तियारात हैं, मुझे बताइए। असल खेल जो है, असल सर्कस जो है, वो तो जरदारी साहब के हाथ में है। जहां डील होनी है, जहां बातचीत तय होनी है, एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ गुफ्तगू शनीद कर रही है। बिलावल साहब अपनी डुगडुगी बजाते रहे। अभी वो इस वक्त मौलाना को राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौलाना वफाकी आईनी अदालत पर इत्तफाक कर जाए। मौलाना उस पर बज़द है। कल की जो रात की जो बैठक है, उसके जितने भी खबरें आई हैं उसके मुताबिक वफाकी आईनी अदालत अलग से, उसमें मौलाना इत्तफाक नहीं कर रहे। हाँ, मौलाना यही कह रहे हैं कि अगर हुकूमत हमारे मुसव्वदे पर अमल कर लेती है या उसको मान लेती है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन सवाल ये है कि जो हुकूमत का मसवदा है, क्या आपने देखा है, क्या मैंने देखा है, क्या उस पर बहस हुई है, क्या उस पर किसी जगह पर बातचीत हो रही है? ये जो बार एसोसिएशन ने जो तजावीज दी है वो कहाँ है? कल जो वकला कन्वेंशन हो रहा था पाकिस्तान में 2 दिन पहले कराची के अंदर, जी वही मैं कह रहा था कि अब देखिए ना रद्द-ए-अमल किस तरह से मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं? हम सियासी उजलत में, सियासी जल्दबाजी में, अच्छा पहले तो हुकूमत ने जिद बना ली कि 25 से पहले हमने हर सूरत में करना है। पता नहीं उसमें कौन सी 25 को लॉटरी निकलनी थी, किसकी निकलनी थी, हमें नहीं मालूम। अच्छा, अब वो 25 वाली बात जो है डिफ्यूज हो रही है। अब ये जो आज डिले हुआ है, मुझे नहीं लगता ये अगले 2-3 दिन में भी हो सकेगा। इतना आसान काम नहीं है। इसलिए कि देखिए, नवाज शरीफ साहब की बैठक अगर कामयाब हो जाती कल रात की, तो नवाज शरीफ साहब फजलुर रहमान के साथ पूरे बरात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जरदारी साहब नहीं बैठे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने की, फजलुर रहमान ने अपने रिजर्वेशन शेयर कर दिए, बिलावल ने अपने कर दिए, इसहाक डार ने कहा भी 2 से 4 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा, चंद दिन लगेंगे। इसका मतलब है जो रात आपने ड्रामा करने की कोशिश की वो कामयाब नहीं हो सका, और पहला राउंड भी उनका नहीं हो सका। जो इतवार वाले दिन उन्होंने करना था वो भी नहीं हो सका। उनको दिखाई देता है हमें कि जैसे ही शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास खत्म हुआ, तो ये एक हम देखते हैं कि पार्टी की सरबराह सर जोड़कर एक दो, देखिए अदालती इस्लाहात का होना बहुत जरूरी है। मैं इसका हामी हूं, पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। जुडिशल रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क आगे नहीं जाएगा। लेकिन इसका कोई तरीकाकार डेमोक्रेटिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, डिबेटेबल तरीके से लोगों को इंगेज करके वो चीजें हो सकती थी ना। आपने तो इंगेज नहीं किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पीटीआई को इंगेज करेंगे, दूसरी तरफ आप पीटीआई के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डायलॉग कैसे चलेगा? पाकिस्तान तरीके साहब तो किसी सूरत इनके साथ किसी भी मौजूद पे बिल्कुल नहीं बैठेगी। एक सूरत में बैठ सकती है, मैंने आपको बताया कि अगर वफाकी हुकूमत ये इत्तेफाक कर ले कि जी 5 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो उसका हिस्सा बनेंगे, एक मिलिट्री कोर्ट से आप दस्तबरदार हो जाएं, जो आपने कहा है फंडामेंटल राइट्स के सवाल, तो बाकी बचा क्या इसमें? तो सर अगर वो इतने सीरियस होते तो मुसवदा तो उन्होंने अभी तक कोई तैयार नहीं किया। देखिए मसवदा तो हुकूमत ने भी तैयार नहीं किया ना, है ना। आप मुझे बताएं ना, हुकूमत ने कौन सा मसवदा तैयार करके सबके सामने पेश कर दिया कि ये मसवदा है? इसी पर तो आ रही है ना कि ये करना चाहते हैं। जैसे मौलाना ने अपना बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बनाया, दीगर बड़ी पार्टियों ने अपना अपना, तो उन्होंने तो मौलाना के साथ अपना मामला तय कर लिया ना। देखिए उन्होंने जो कमेटी बनी थी, सलमान अकरम राजा वगैरह और ये जो जेयूआई के दरमियान, उसमें कामरान मुर्तजा थे, तो उन्होंने तो अपना पलड़ा जो है वो जेयूआई के ऊपर डाल दिया है। क्योंकि अब उनके पास तो नंबर गेम पूरे नहीं है ना पीटीआई के पास, अब जेयूआई के ऊपर है। जेयूआई पीटीआई के साथ किस तरह से चलती है? क्या वो हुकूमत का साथ देती है, हुकूमत के मसवदे के साथ खड़ी हो जाती है, या वो अपने मसवदे पे इत्तेफाक करती है, या वो पीटीआई को एंगेज करके आगे चलती है? ये डिबेट है ना। गेम तो बुनियादी तौर पे कोर्ट जो है इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के पास है ना, इसलिए जरदारी साहब भी उनको बुला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी बुला रहे हैं, शहबाज शरीफ भी मिल रहे हैं, सागदार भी मिल रहे हैं। अगर मौलाना नहीं मानते, बिलफर्ज अगर वो ये सारी सिचुएशन जिस तरह से अभी भी, कल भी उनकी जो गुफ्तगू थी वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं थी कि मान लिया जाए कि वो एक पेज पर आ गए गवर्नमेंट के साथ, अगर नहीं मानते तो फिर किस तरीके से ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? तो ये डेडलॉक हुकूमत का जो है, जो हुकूमत का मसवदा है, उस पर डेडलॉक बरकरार रहेगा। तो 25 अक्टूबर को भी आपको ये होती हुई दिखाई नहीं? देखिए मुझे अभी ये लग रहा है कि जिस किस्म की कल रात कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, वो रात तो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं। और रात ब्रेक थ्रू हो जाता तो नवाज शरीफ साहब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अब मसला ये है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। फजलुर रहमान साहब ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ ये हुकूमत कहती है कि जी 25 तारीख से कि हमें हर सूरत में करवाना है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं हम फर्द को देखकर ये नहीं चला रहे, तो फिर आप 25 के ऊपर इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? ये कौन सी लॉटरी है, कौन सा पंडोरा है जो आप 25 से पहले हर सूरत में करना चाहते हैं? आप अंदाजा लगाए ना, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होने जा रही है, जुडिशियल रिफॉर्म्स होने जा रही है, उस पर कौमी असम्बली में अभी तक डिबेट ही नहीं हुई। और जब कौमी असम्बली में डिबेट की बारी आएगी तो सब लोगों को छुपा छुपू के लोगों को
किया जाएगा, लोगों को कहा जा रहा है पाकिस्तान से बाहर है तो वो भी आ जाए, हर एक को बुलाया जा रहा है, जो मुनर्रिफ अरकान है पीटीआई के उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा खेल लग रहा है कि अदालती रिफॉर्म्स के नतीजे में एक बहुत बड़ी सियासत हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, जिससे डेडलॉक पैदा हुआ है। डेडलॉक पैदा हुआ है और हम देखेंगे कि 25 अक्टूबर से पहले क्या सूरत हाल बनती है। सलमान आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे।